There are 4 types of pyramid. I said that number pyramid. Which pyramid I said? इसका मतलब एक ऑटोट्रॉफ से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो देयर इज एन व्हाट नंबर इज डिक्रीजिंग. देयर इज एन व्हाट बायोमास पिरामिड. तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देयर विल बी व्हाट बायोमास विल कीप ऑन. प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा होगा, उसको नेक्स्ट लेवल खाने वाले उससे कम होंगे, उससे नेक्स्ट लेवल खाने वाले उससे कम होंगे. इसीलिए हमें हर्बीवोर्स होना चाहिए. हाँ, एक मुर्गी 25 केजी खाती है और 1 किलो मीट बनाती है, तो 1 किलो को कितने लोग खाएंगे? 2-3 किलो, 2-3 लोग. और 25 केजी ग्रेन को कितने लोग खाएंगे? सोचो. सो इट विल बी बेटर टू बी हर्बीवोर्स. मतलब हम लोग हर्ब्स खाए, चिकन ना खाए. ये आपको पढ़ना भी है. एंड आप क्या समझ रहे थे? मैं मजाक कर रहा हूं. आई सेड another is it is an energy pyramid. Means there is a 10% energy loss at every. Yes. Understood? So which are the pyramid we have seen? Tell me. Biomass, number, biomass, and but there is also one pyramid which is an inverted pyramid. Which one I said that? And this is I said that number, which based on what? Number pyramid. यदि आप ट्री में जाओगे तो ट्री कितनी है? एक ट्री कितना है? 1. उस पे चिड़िया कितने हैं? मतलब उसमें आपको क्या दिखेगा? और पत्तों पे क्या है? कीड़े कितने हैं? कितने कीड़े हैं? बहुत सारे. सो आई सेड दैट द नंबर pyramid is one. Which one I said that it can be also inverted. Number pyramid. Understood? एक एग्जाम्पल याद रखना किसका? ट्री पे कौन है? बर्ड्स. और लिप्स पे क्या है? वॉर्म्स. क्या? तो यहां पर क्या है? ट्री की संख्या कम है, प्रोड्यूसर कम है, ट्री पे डिपेंडेंट. तो धीरे धीरे आपको क्या दिखते जा रहा है? So which are the types of pyramid? And the inverted number pyramid. Inverted number pyramid. So these are the types of what? Pyramids we have seen. I said symbiosis. What is the meaning of symbiosis? मुंबई. कहाँ पे? मुंबई में. हाँ, द्वारका में भी आ गया, पुणे में. चलो कहीं भी हो.
What is the meaning of symbiosis? हाँ, मैं बोलता रहता हूँ, जब मैं कोरल्स पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ मैं. इंट्रैक्शन, क्या मुझे भी तो समझाओ क्या दो. आई सेड दैट, मैं एक लाइन बोलूंगा लेकिन आप उसमें से सही बताना क्या है. ठीक है. इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. इट इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेसिस. तो टू स्पेसिस तो डिफरेंट ही होंगे. तो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, कौवा कौवा के बीच में इंटरेक्शन होगा. अरे तुम मेरा खाना खा जा रहे हो. सो देयर विल नॉट बी अ पॉसिबिलिटी. आई सेड दैट इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पेसिस. और स्पेसिस कहेंगे तो डिफरेंट बोला जाता है. तो इट इज एन सिम्बियोसिस एंड व्हाट, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. कहने का मतलब नहीं होता है यहाँ पे टू डिफरेंट स्पेसिस, ऑर्गेनिज्म ऑफ टू डिफरेंट स्पेसिस. It is, and I said that interaction between organism of two different species. It is an interaction between organism of two different species. Which are the type of symbiotic relations? Mutualism, commensalism, parasitism. Clear है? Mutualism, commensalism, and I said parasitism. I said that mutualism, I said, in which both the species are interacting with each other, and then species 1 and then species 2, both are benefited. Both are benefited with each other. Both are benefited with each other, like coral polyps and Juxanthalae algae. For example, I said that coral polyps and which one I said that? Juxanthalae. Which kind of relationship is? Both are benefiting with each other. Coral polyps provide shelter to the algae, Juxanthalae algae, and Juxanthalae algae is making food for the corals. So दोनों एक दूसरे को benefit दे रहे हैं. Commensalism, I said that one species is benefiting and another is what? Unharmed. One is benefiting and then other species organism is what?
neither benefit nor harmed. Yes? So it is known as what? Commensalism. If we'll go into the equatorial rainforest, there is a what? Tree canopies. What is there? And the trees are very large, and because of that, sunlights are not able to reach to the ground, and therefore lianas or epiphytes, in the search of what? They used to take the help of tree and then ride over there and then take the what? Sunlight. So it is what I said? Epiphyte. Understood? Clear? बफेलो जानते होंगे ना? बफेलो के शरीर पे क्या होता है? वॉर्म्स, लेकिन वो ऐसे निकाल नहीं सकता. कौन आता है? कौवा. क्रॉ क्रॉ काऊ काय करेगा. इट इज एन विच काइंड ऑफ इट? म्यूचुअलिज्म. और आपका यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है, किसके कारण से नहीं हो रहा है? बचपन में ऐसा ही होता था ना, मिट्टी उट्टी खा लेते थे इधर से उधर से, और पेट में क्या हो जाता था? कीड़े, टेपवॉर्म. तो जो आप खाते थे वो खाता था, आपका ग्रोथ नहीं होता था, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैरासाइटिज्म. सो वन इज benefiting, another is harmed. One is benefiting and other is harm. और इसका एग्जाम्पल तो दुनिया जहान में है. So I said that you can take a tapeworm in human being. कहाँ पे रहता है? हाँ? Intestine. लार्ज में रहेगा या स्मॉल में रहेगा? वेरी गुड, स्मॉल में. हाँ. सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज एब्जॉर्ब बाय हु? विच इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन. और उसके बाद ये एब्जॉर्ब करके कहाँ जाता है? दिस न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाता है? हाँ, ब्लड में जाता है. पता नहीं, मुझे नहीं पता था आज तक. It goes towards liver, and thereafter I said लीवर पहले तो एक बाइल जूस को छोड़ता है मिलाने के लिए, बोलता है जाओ अच्छे से मैं मिला के दे देता हूँ, तुम लोग चिपक चिपक के आपस में टूटो जाओ इंटेस्टाइन में. फिर वहां से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और वाटर इज एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, एंड व्हेन द लार्ज इंटेस्टाइन गेट अफेक्टेड देन फिर लाल झंडे की जरूरत होती है, नहीं तो बाथरूम में बैठे रहो. सो आई सेड दैट दिस इज नोन एज, और आई सेड दैट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? एंड एक रिलेशनशिप होता है प्रेडेटर, और दूसरा कौन होता है? जिसको खाया जाता है. प्रे. प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप. So one relationship symbiosis, another relationship, which one we have seen? Clear? So one symbiosis relationship, yes. इसमें आपने म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, और एक हमने देखा विच आई सेड दैट, और एक रिलेशनशिप होता है हॉस्ट. आप बोलते आओ हमारे ऊपर बैठ के रहो, घर बनाओ,
क्या करो, मैं आपके लिए कुछ दिक्कत नहीं करूंगा, है ना। तो पेड़ के साथ साथ कौन रहते हैं, चिड़ियाएं रहती हैं, चिड़िया को कोई इफेक्ट नहीं करती पेड़ को, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, होस्ट। सो विच आर द रिलेशनशिप वी हैव सीन, सिम्बियोसिस, यस, वो तो उसके अंदर के टाइप्स हो गए ना, सिम्बियोसिस, प्रेडेटर, प्रे एंड होस्ट, अंडरस्टूड। एंड सिम्बियोसिस में विच आर वी हैव सीन, mutualism, commensalism and parasitism. So today what we have seen, phosphorus cycle, क्या होता है ये, वॉलनट ट्री, एक को फायदा होता है दूसरे को, ये क्या है, तो आप पेड़ पे रह रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। एंड इसमें कोई हॉस्ट, उसमें ये हो रहा है ना कि आप उसके साथ रह रहे हो, आपको हार्म कर रहा है टू एन एक्सटेंट, आपको खत्म नहीं कर दे रहा है, नहीं, आपकी लाइफ नहीं रह रही, आपकी लाइफ है, यस। तो इसलिए वो आपस में दो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेडेटर कई लोगों को इंटरेक्ट करता है और बोलता है मैं तुम्हारे को खा जाऊंगा। ये मेंस के लिए बता दिया ये वाला पोर्शन। सो आई सेड दैट, कहाँ पे था, so we have started with today, I said phosphorus cycle, sulfur cycle, and which one we have seen, ecological succession, primary succession, secondary succession, ecological climax, फिर उसके बाद ecological pyramid, under that autotrophs, GPP, NPP, then thereafter heterotrophs, and then primary, secondary and tertiary consumers, and thereafter types of pyramids. Which are the types of pyramid? Yes, number, biomass, energy pyramid. Another one we have seen, inverted number pyramid. And then हमने देखा symbiosis relationship, that is a predator prey and then host. Okay, so next Monday को हम लोग मिलेंगे, and next 2 days or 3 days में, एक दिन तो ऐसे ही मैंने किया था, 3 days में our ecosystem, environment and ecology will get